Hi friends, I'm Anand Panchbhai in Engineers classes, and today we're going to start with the next topic in chapter number 3, that is motion in one dimension. Friends, we people have studied what is motion, what is rest. Motion is a relative concept. We've understood what is speed, what is velocity. We know that velocity, when we talk about displacement, it gives us the value of velocity. When we talk about distance traveled or path length, it gives me the value of speed. Fine. Yesterday, I mean in the previous lecture, we have understood the concept of instantaneous. We've understood the concept of instantaneous. It's actually હું છે ને થોડો મારું કોન્સન્ટ્રેશન નથી રહી રહ્યું એને કારણે. સો પ્લીઝ બી અટેન્ટિવ. બરાબર કે નહીં દીકરા? So when we talk about instantaneous speed or velocity, we've understood how exactly what is the physical significance of it. Fine. How to deal with that thing. So we understood when we talk about average velocity, or speed, that is equal to delta x upon delta t. Fine. Delta x upon delta t is x2 minus x1 upon t2 minus t1. Is it clear? पता चला कि नहीं पता चला? So that gives me the value of average velocity in between given time interval. But when I am supposed to find out instantaneous velocity, so instantaneous velocity, it is equal to dx by dt. Fine. And this is a mathematical process that we have to do. पता चला कि नहीं पता चला? जो yesterday we have understood, the same thing can be represented as x dot. X dot means first differentiation of x. Clear हुआ कि नहीं हुआ? First differentiation of x. So now let's say for example we are having x of t which is equal to t square plus 3t plus 2. This is what is given to me. My first question is like this. Find x of 2 and x of 5. मतलब 5 seconds पे what is the displacement? 2 seconds पे what is the displacement? 5 seconds पे what is the displacement? पता चला कि नहीं पता चला? Clear? Fine. 2 seconds पे what is the value of x? 5 seconds पे what is the value of x? Fine. X of 5 मतलब x of 2 मतलब क्या? 2 seconds पे what is the value of x? X is a function of time. The relationship, the functionality is given like this. फाइन. ओके. तो मुझे 2 सेकेंड पे x कितना है वो फाइंड करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा t की जगह 2 रख दो. फाइन. सो वैल्यू ऑफ x ऑफ 2 विच इज इक्वल टू t की जगह क्या रखने का? 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2. सो वी हैव गॉट 4 प्लस 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12 मीटर इफ x इज इन मीटर. और बोल दिया है t इज इन सेकेंड्स. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x ऑफ 2. Fine. Now let us say if I'm supposed to find out x of 5, so I can say that 5 the whole square plus 3 multiplied by 5 plus 2, which comes out to be 25 plus 15 plus 2. So this is 30, 40, 42 meter. पता चला कि नहीं पता चला? Clear? तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2 सेकेंड पे वो बंदा, वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? 12 मीटर पे होगा. 5 सेकेंड्स पे वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? तो बोले 42 मीटर पे होगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चल रहा है इतना? फाइन. इतना डन. कोई डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर? चलो. सो नाउ आफ्टर दिस वी कैन से दैट माय क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस. What is the average speed or what is the average velocity in between t is equal to 2 seconds to t is equal to 5 seconds? पता चला कि नहीं पता चला? 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है? तो वी कैन से दैट v average which is equal to delta x upon delta t which is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. अच्छा, x2 मतलब वो कहां पे? 5 सेकेंड पे. 5 सेकेंड पे वो कहां पे है? माइनस x1 2 सेकेंड पे वो कहां पे है? पता चला कि नहीं पता चला? 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक का मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मैं बोलूंगा 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे वो कहां पे था? 2 सेकेंड पे वो कहां पे था? डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 5 minus 2. क्लियर हुआ? 5 सेकेंड्स. सो दिस इज चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी सिंपल.
Very simple. So we've got a value of average velocity in between the given time period, which is equal to x of 5 का value कितना है? x of 5 is equal to 42 minus x of 2 is equal to 12. So divided by 3 कितना हुआ ये? 30 divided by 3, which comes out to be 10 meter per second. Meter per second. Meter per second. पता चला कि नहीं पता चला? So we have got the average velocity, which is 10 meter per second. My question number 3 comes this way. Find instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds and t is equal to 5 seconds. बोलो, क्वेश्चन में हर एक जगह सेम ही दिख रहा है, टाइम तो सेम ही दिख रहा है, पर हर एक में कुछ अलग फाइंड किया. वी हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों टाइम पे. फाइन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, पता चला कि नहीं पता चला. ये पोजीशन उसका क्या है, x इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे पोजीशन क्या है. बाद में 2 से 5 तक वो जो ट्रैवल कर रहा है उसका एवरेज, उसका वेलोसिटी कितना है, दैट इज व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड. नाउ आई वांट टू नो एग्जैक्टली t इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना था, एग्जैक्टली t इक्वल टू 5 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना था. तो मैंने बोला दिस इज, इट इज नॉट गिवन. अगर ऐसा नहीं बोला ना, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इक्वल टू 5 सेकंड्स, you have to understand it is instantaneous velocity only, because they have asked us to calculate the value of velocity at given instant of time. So even if they are not specifying instantaneous, you have to understand this is what they are asking. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, बगासा खा के क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं आया, वेरी गुड. अल्लाह समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है, नहीं. फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, मतलब इंस्टेंटेनियस हुआ कि नहीं हुआ. एट t इक्वल टू 5 सेकंड्स, वहां पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स. फाइन, सो दैट कम्स आउट ऑफ एवरेज. अगर वेलोसिटी इन बिटवीन ऐसा बोला है फिर भी इट इज एवरेज, इट विल बिकम एवरेज ओनली. बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड एट t इक्वल टू 5 सेकंड्स, उसका मतलब क्या हुआ, एट दैट इंस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, पता चला. ओके, तो कैसे कैलकुलेट करने का, तो मैंने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यू हैव टू कैलकुलेट दिस वे. सो वेलोसिटी विच इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ x, बराबर x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट इज d बाय dt ऑफ x ऑफ t. फाइन, ओके सर आपने तो dx बाय dt बोला है ना, तो dx बाय dt लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. व्हाई एम आई शोइंग इट टू यू, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. फाइन, यानी अगर कहीं पे तूने ऐसा देखा ना d बाय dt ऑफ x ऑफ t, सर ऐसा तो आपने पढ़ाया नहीं था, नहीं, सेम थिंग. फाइन, पता चला कि नहीं पता चला, इट्स वन एंड द सेम, इट इज वन एंड द सेम, x डॉट इट इज वन एंड द सेम. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फाइन, दिस आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. फाइन, चलो. सो अभी क्या करना है, x ऑफ t का वैल्यू यहां पे डालने का. तो वेलोसिटी बेट पर हम यहां पे देख, d बाय dt ऑफ x ऑफ t कितना है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2. ओके, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 3 कॉमन निकल गया, t का डिफरेंशिएशन 1, मतलब 1 into 3 is equal to 3 plus 2 का डिफरेंशिएशन 0. yesterday we studied it. Fine, so velocity as a function of time I have got, which is equal to this. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर. फाइन, कल किया था ना डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 3t का डिफरेंशिएशन 3 बाहर निकल गया, t का डिफरेंशिएशन 1, dt बाई dt हो गया कि नहीं हो गया, सबको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है, क्लियर. हाँ, कोई बात नहीं, चलो. सो इसीलिए कल आना था, राइट. ओके, सो अभी लेक्चर के बाद बैठेंगे उसके लिए, बराबर. पर लेक्चर कभी मिस नहीं करना है, इट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फाइन, कई वांधो नहीं. रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. सो v ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस 3, v ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस 3, पता चला. अच्छा, अभी तो मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है ना. फाइन, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अभी क्या बोलने का, v एट व्हाट सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड. सो v ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, सो इट इज 4 प्लस 3, 7 मीटर पर सेकेंड. यानी तब उसका 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है. और v ऑफ 5 सेकेंड पूछा हुआ है, तो विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड. सो 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड था, और 5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड था, पर उसका जो एवरेज वेलोसिटी था 2 से लेके 5 सेकेंड तक, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. पता चला कि नहीं पता चला, क्लियर हो रहा है.
पक्का क्लियर हो रहा है? चलो लिखो फटफट. यस, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन.